Hello guys, so today we are going to do a event analysis for a person who is working in a five-star hotel in the F&B department. So let's start. So there is this is the person, a boy who is working in the hotel, and one of his colleague who is going to leave the hotel and work in another location. he his colleague has invited this boy to have some tea with him in a cafe. So he accepts his invitation and he went with him. Like the boy was this person was expecting that there will be 2 3 people with him, but there was a lot of people, a group was there. People with the same hotel was there, so he was quite surprised to see that. Then because he was surprised because he usually don't join the group, he didn't like to be in the group. Then he sat at the table and at the chair, and he start enjoying the tea with the group. He was enjoying everything, but then after some time one of his supervisor joined the table, joined the group. Then when he entered into the cafe, he he put the helmet onto his face, which was quite disrespectful for this boy, but to some extent it was funny for all the group. But then he even start pulling his his bow tie or his dress, his uniform, which was obviously disrespectful for this boy, but it was disrespectful for the group as well. Now the group sees it as like the supervisor is crossing his limit. Then the boy, the colleague who invited him, he called him and he let him sit on his table beside him, so that the supervisor cannot tease him or cannot bully him. So now the boy is asking like what are the things he is doing which is making the supervisor, which is making the people to tease him, to always disrespect him, and what he should do to avoid such types of disrespectful events happening with him. So let's start with the analysis. So the first question we should ask is why his supervisor is teasing and bullying him in the name of joke. So what are the reasons any person bully someone or tease someone? There are many reasons, so let's start and look into them. First is he sees you as emotionally controlled person and non-reactive. You are not an aggressive reactor. He thinks he can say anything and you will not create a scene. So he keeps pushing because your silence makes him powerful. So like ये जो सुपरवाइज़र है वो ही समझता है कि तुम बहुत इमोशनली कंट्रोल पर्सन हो, तुम अपने इमोशंस को जो है एक्सप्रेस नहीं करते हो, या तुम अपने इमोशंस को जो है फुली एक्सप्रेस नहीं करते हो लोगों के सामने, और तुम बहुत ज़्यादा नॉन रिएक्टिव हो, तुम कुछ रिएक्ट भी नहीं करते हो। जहाँ पर तुमको एग्रेसिवली रिएक्ट करना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए या कुछ कहना चाहिए, वहाँ पर तुम चुप रहते हो। तो तुम्हारे इस नॉन एग्रेसिव रिएक्शन को वो एक परमिशन समझता है कि वो जो है तुमको कुछ बोलेगा, तुम्हारे साथ कुछ करेगा, और तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। और ऐसा ही है, तुम जो है आप कुछ एग्रेसिव रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो उस चीज़ को वो एज अ परमिशन लेता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। सो वॉट यू शुड डू इज़ you should immediately react. You should clearly say or clearly communicate that you cannot do this to me.
I cannot, I will not tolerate this type of behavior with myself. You can say something like this. You can always communicate verbally to avoid this thing. Another reason can be he wants attention from the group. Teasing you gives him quick laughs from others. It makes him feel socially superior. So this is another reason in the group when someone starts bullying someone to to make the group or people laugh. So this can also be the reason. Another reason is third reason is he has misread your politeness. Polite doesn't make weak. अगर कोई पोलाइट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है. People like him only understand boundaries when they face silent, cold, resistant और clear verbal limits. तो इन जैसे लोग बाउंड्रीज को कब समझते हैं, जब उनके साथ एकदम साइलेंट और कोल्डली जो है बिहेव किया जाए, एकदम र्यूडली बिहेव किया जाए, तभी वो लोग जो है तुम्हारी बाउंड्री को समझते हैं. और वर्बली जो है उनको अपनी या उनकी लिमिट जो है बताई जाए, तब वो इस चीज़ को समझते हैं, बाउंड्री समझते हैं. द फोर्थ रीज़न ही इज़ bullying is he sees you as someone who doesn't ruin workplace harmony. तो वो सुपरवाइजर समझता है कि तुम ऐसे इंसान हो जो अपने लाइक इन्वायरमेंट को, जो वहाँ पर इन्वायरमेंट है, वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट है या जो भी आसपास का माहौल है, तुम उस माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते हो, तो इसलिए तुम जो है कुछ बोलते नहीं हो या कुछ कहते नहीं हो. तो वो इस चीज़ को साइकोलॉजिकल सिग्नल समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ. यू केयर अबाउट पीस, यू डोंट लाइक ड्रामा. तुम शांति चाहते हो, तुमको ड्रामा पसंद नहीं है, तुम मतलब लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं बनाना चाहते. सच पर्सनालिटीज गेट टारगेटेड बाय इनसिक्योर पीपल बिकॉज दे अज्यूम ही वुडंट एस्केलेट दिस टू मैनेजर्स. सो तुम्हारी इस थिंकिंग को वो ऐसे लेता है कि तुम कुछ भी करोगे, लाइक वो कुछ भी करेगा, तुम जो है इस चीज़ को एस्केलेट नहीं करोगे, तुम इस चीज़ को जो अपने मैनेज तक नहीं ले जाओगे या तुम इस चीज़ को ऊपर तक नहीं पहुंचाओगे. द फिफ्थ रीजन ही इज बुलिंग यू, ही इज नॉट इमोशनली मैच्योर. Like literally he is not emotionally mature, because if some mature person will not do something like this. Like to this extent, when he was putting the helmet on his uh, face, maybe funny for people, but when he was doing all the things after this was very disrespectful. Okay, so his behavior is a sign of low emotional intelligence and shallow personality. Because I mean, nobody in the group was doing something like this, but that, like, there are some personality in the society who is always like this, who always like this supervisor. So now what we can do, like what he can do to stop this type of teasing and bullying. So there are some micro things which he have to make habit to avoid such type of scenario to happen again. When he teases you, don't smile, don't react, stay stone faced. जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जो कि डिसरिस्पेक्टफुल है, तो आपको स्माइल नहीं करना है. ये नहीं है कि लाइक सारा ग्रुप अगर उस चीज़ को फ़नी वे में ले रहा, उनके लिए मजाक है, तो आपके लिए भी वो मजाक है. आप भी जो है उनको उस माहौल को ना बिगाड़ने के लिए आप भी स्माइल करने लगे. जहाँ पर जब आपने स्माइल शुरू कर दी, तो दैट इज़ जस्ट अ परमिशन दैट आई लाइक डेट. आप जो मेरे साथ कर रहे हो वो मेरे को पसंद है, इसलिए मैं स्माइल कर रहा हूँ और आप मेरे साथ ये दोबारा दोहरा सकते हो. जब भी आपको कोई टीज़ करता है, डोंट स्माइल, डोंट रिएक्ट भी नहीं करना है. लाइक आपको कुछ नेगेटिव रिएक्शन भी नहीं देना है. आपको एकदम स्टोन फेस्ड रहना है, एकदम
फेशियल एक्सप्रेशन जो है एकदम न्यूट्रल रहने चाहिए, ना तो कुछ आपको कुछ पॉजिटिव सिग्नल देना है ना नेगेटिव सिग्नल देना है। डू नॉट रिवार्ड हिम विद अटेंशन, अटेंशन ही नहीं देनी है आपको, ऐसे ऐसे करना है जैसे कि आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा है। बस आपको एकदम न्यूट्रल चेहरे के साथ, न्यूट्रल एक्सप्रेशन के साथ उस इंसान की तरफ देखना है, और इट विल सिंपली मेक हिम लाइक ही इज़ डूइंग सम like foolish thing. Second reason he can do, second thing which he can, which this boy can do to avoid this type scenario is look at him for 2 seconds expressionless and then look away. तो आपको क्या करना है, ऐसे कुछ हो तो 2 सेकंड तक आपको एकदम एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसकी आंखों में देखना है, फिर उसके बाद जो है कहीं और ध्यान अपना कर लेना है। इससे क्या लगेगा कि इससे आप क्या कर रहे हो, दिस कम्युनिकेट यू डिडेंट अफेक्ट मी, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, कि आपको जो है उस इंसान की हरकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो इंसान जो है आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। Then the third thing which he can do is continue your work as if he's irrelevant. When there is no reaction, the fun dies. Like if you will give him reaction, you just you do whatever you are doing and don't react. Give no reaction. When the person like gives takes receives no reaction, there is no fun in the teasing. Another thing which you can do is communicate clear boundaries without hesitation with a firm tone. तो आपको क्या करना है, एक सख्त लहजे में आपको अपनी बाउंड्री जो है कम्युनिकेट, आपको अपनी बाउंड्री बतानी है कि आप मेरे साथ ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, मैं ये चीज़ टॉलरेट नहीं करूँगा, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। आपको इस तरीके से जो है अपनी बाउंड्री को कम्युनिकेट करना है सामने वाले इंसान से। लेट्स कीप इट प्रोफेशनल, आप क्या क्या बोल सकते हैं, लेट्स कीप इट प्रोफेशनल, इट विल बी बेटर इफ़ यू बिहेव प्रोफेशनली। लाइक अगर आपके वर्क प्लेस पे ऐसा हो रहा है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करो। जैसे ही आप ये लाइन बोलते हो वैसे ही उस इंसान का ध्यान अपनी तरफ जाता है कि मैं जो है हूँ बहुत अनप्रोफेशनली बिहेव कर रहा हूँ, और ये चीज़ जो है आप उसकी इमेज को ख़राब कर रही है। ठीक है, और आप क्या बोल सकते हो, आई डोंट लाइक जोक्स एट द वर्क प्लेस, आई डोंट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ अनप्रोफेशनल बिहेवियर। मुझे काम की जगह पे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो कि इस टाइप का अनप्रोफेशनल बिहेवियर मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगा। आपको एकदम सख्त लहजे में ये अपनी बाउंड्री को जो है कम्युनिकेट करना है। तो जैसा ही आप ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो फोर्थ पॉइंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और आप क्या बोल सकते हो, वाई आर यू जोकिंग विद मी लाइक दिस। आप बोल सकते हो जैसे कोई आप लाइक आपके साथ मजाक करता है, ऐसा मजाक जो आपको पसंद नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि आप ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हो। जस्ट आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है सामने वाले को दे देना, और देन ही विल हैव नो आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके पास कुछ जवाब नहीं हुआ बोलने के लिए, तो वो क्या होगा, वो साइलेंट हो जाएगा। जब आप उससे पूछोगे कि आप ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हो, तो वो क्या जवाब देगा, उसके पास बोलने के लिए कुछ होगा ही नहीं। और जो होगा तो वो बोल नहीं सकेगा कि मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए मैं ये सब बकवास कर रहा हूँ। वो ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि वो वर्क प्लेस पर है, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकता है। ओके, so these are some points, like 4 points which are like which are very important and which are like magical to
मेक योर बाउंड्री। आपको अपनी अगर बाउंड्री बनानी है, आपको अपनी इमेज बनानी है इस तरीके की कि कोई आपके साथ कुछ मजाक ना कर सके, तो आपको इन 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। आपके साथ कुछ होता है, मजाक होता है, तो आपको हंसना तो बिल्कुल नहीं है। आपको 2 सेकंड तक, कुछ सेकंड तक आपको उसकी आंखों में देखना है और बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ, और उसके बाद जो अपना ध्यान कहीं और कर लेना है, अपने काम पे ध्यान वापस कर लेना है। इससे सामने वाले को मैसेज आता है कि मुझे आपकी हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अपनी बाउंड्री को जो है क्लियरली कम्युनिकेट करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आगे से कोई भी इंसान आपके साथ इस तरीके की आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, कोई भी इंसान इस तरीके से मजाक नहीं बनाएगा। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।